Okay, so we will continue. Sony, is it Yes, sir. visible and audible? Yes, Okay, so I'll just start again because we were starting this example. Here the bipolar resistor is given with the S capacitor and we are asked to find it out the what the various gains. Okay, so here whatever the various gains are there, so you have to ask to find it out. Now the rho S, rho L, and rho in and rho out that we have find it out previously. We got this value. Now we will go to find it out the power gain. So power gain formula is there. You put the value of S21. Now here you have to put the value only for the magnitude. So be very cautious about the calculation. Here the only challenge is the calculation and the formula. If you will remember the formula and calculation, then everything is okay because okay. it is there in this numericals. So this is what G, that is the power gain, equals to S21 mod square 1 minus rho L mod square upon 1 minus rho in mod square 1 minus S22 rho L mod. So you have to do the calculation inside for this and then you have to take a mod square. So everything is mod, so you will not get any imaginary value. So this is what 13.1 is the gain you got. Then you go for the available power gain. So this is GA, power gain is G, available power gain is GA. So that is S21 square 1 minus rho S. So here rho L is given. Rho L is, it is power transmitted to the load, total power, and with reference to rho in. This power reference to rho S and rho out. Okay, so this way from the two-port diagram, you can refer this. So what is the difference between these two power? So it comes 19.8. So your power gain is less and available power gain is more. So available power gain is always more than the your power gain. Then your transducer power gain, that is how much, it is always less than the both the power gain. So GT is given by this formula. So only you require a practice for doing the this problem. Nothing special is here. So have you got any doubt, No, Sony? sir. After doing, then if I have any doubt, then I ask you. So you have to do No, this. sir. Right now, no any doubt. After doing. So you have to do. So such type of problems are asked. So this is very simple problem. Okay. So now we will go for the two-port power gain. Further discussion we will go. So here input matching. So including the matching network. Now previously we are not considered the matching network. Here input matching network, output matching network. So this is what GS and this is what GO and this is what GL. So these are the various gain. So GS. So after considering the matching network, GS is given by this formula, GO and GL. So all these are given by this formulation. So these formulas you can see. Okay. Further, we will go for such numerical GS. Again, these formulations are there. So this formulation directly we use in the numerical. So this you just go through that. Then you have to go for the stability. So here two conditions are there: unconditionally stable and conditionally stable. So here impedance matching is the most important thing. So in this, the network is unconditionally stable. So in entire Smith chart, the stability is there. And
conditionally stable or potentially unstable is what in certain part of the what the Smith chart it is stable. So this stability calculation of stability you require to go for the find it out the stability circle. Now what is this stability circle? Row in row out these formulas are required. So these formulas are for we'll discuss that this formulation instead of going into this derivation. I will directly go for the calculation part, numerical. Okay. Now, what is this? From this diagram, you can find it out. How we will find it out the stability. So stability can be find it out. Generally, this is what the case. This is S11 less than 1. S11 greater than 1. Generally, this problem is not asked because S11 less than 1 means the reflection coefficient, the lesser part is get reflected from the input port and more is transmitted. S11 greater than 1 means there are the more reflections. So this type of generally for the amplifier S11 greater than 1, generally we don't use this. But anyway, the problem may come at the theoretical level. So if it is S11, first case I'll explain S11 less than 1 means what? You will calculate this CL. Now what is this CL? CL will the center of this circle. So in this, it will be having the angle and this length from the center to this point. So that you will get by the formula of the CL. And most of the time, the CL will be outside the Smith chart. It will be here somewhere. And then next is RL. So RL is only having the magnitude. CL is having both magnitude as well as angle. RL is the radius of this circle. Now this circle you have drawn. Only this much is expected in the stability calculation problem. Only you have to draw this circle. That's it. And the problem is solved. For drawing this circle, what you require? You require the radius and the center, CL and RL. So at the output, how the stability? So whatever this shaded portion is stable. For what case? S11 is less than 1. So S11 is less than 1, then it will be this part will be the stable. If your S11 is greater than 1 and same circle you have drawn, so this overlapping part will be the stable. So you can design amplifier in this area only. If S11 is less than 1, you can design in this area. So here you can understand the difference. So obviously for the amplifier design, we require S11 always less than 1. But for the oscillator, you require S11 greater than 1. Have you understood this? Yes, sir. Okay, so this is a simple concept. Only now calculation how we will do. Now, what will be the tools for unconditionally stable? How you will identify that it is stable or not? So here it is called K delta test. So this is the parameter K and this is delta. Here S11 and S22 parameters are taken and delta is taken. Now what is delta? Delta is mod of S11 S22 minus S12 S21. If the K is greater than 1, when you will calculate this K, if your K is greater than 1 and delta is less than 1, then what? This will satisfy the unconditionally stable condition. Means here in the circle unconditionally stable, this is potentially stable. In this diagram, the entire Smith chart will be stable for this parameter of the S parameter of that said device. That is what the FET or BGT. Okay, so this is what the condition. That is what the test for unconditionally stable. It is called the K delta test. Most of the time the numerical comes or maybe the small theory question. What is K delta test? Mainly the problem numericals comes on the K delta test. Okay, directly they mentioned. Now another alternative is there that is called the mu test. Mu. Now the formula, again you have to remember the formula for K and delta. That formulation you need to remember.
So what I'll suggest, all this formulation you can put on the single paper one by one, distinguish it, and you have to remember the formulas. Now this Okay. mu, what is this mu? Mu again, it is for the test. Now instead of both two parameter, mu is the single parameter that will give you the understanding. Now what is that? This is what mu. If your mu is greater than 1, then it will be unconditionally stable. Your Smith chart for given parameter, given S parameter, it will be unconditionally stable. Okay. So this way the things are there. And one more thing, here you can compare stability of two transistors. If a transistor is given with mu equals to value 1.5, and another transistor, if you will got mu equals to 2.5, so the higher the value of mu, the more the stability. Okay, you can write it down this. So if mu is greater than 1, it is unconditionally stable. But in unconditionally stable also, you can do the comparison. What comparison? If the value of mu is higher, so it is more stable. Okay. So generally the mu test may not be Mu, used. This mu is higher. Mu is higher than resistance is. then stability, it is more stable. The transistor is more, the amplifier, sorry, not transistor, the amplifier is more stable, unconditionally stable, unconditionally Okay. more stable. Hmm. Okay, sir. Okay, so this is what the thing. Now we have to solve a numerical based on this. So the C formula, R formula is there, and then this is what the formula, how it is developed, but we will not go in that. We will directly go for the new. So this is 12.2 transistor stability. So it talks about the transistor stability. So what is numerical? The transistor number is given, that is the HEMT. Okay, heterojunction metal transistor is there. And has the following scattering parameter. So this HEMT, these S parameters are given. Okay. Now what is us? Determine the stability of transistor by using K delta test and the mu test. दोनों यूज करने के लिए बोला, तो दोनों करेंगे. K delta test and mu test and plot the stability circle on the Smith chart. तो स्मिथ चार्ट पे स्टेबिलिटी सर्कल निकालें. सो पहले क्या निकालना है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट आउट वेदर इट इज अनकंडीशनली स्टेबल और नॉट. If we found it out it is unconditionally stable, then no need to go for the mu, go for the Smith chart plotting and all this. Unconditionally stable है तो सारा का सारा Smith chart will be stable. So you can find it out delta. Delta is less than 1. Okay, it is satisfied. K should be greater than 1. So K is not greater than 1. So what? Thus we have delta is less than 1, but K is not greater than 1. So it is, so the unconditionally stable criteria is not satisfied. So it is called potentially unstable. Okay, so it is potentially unstable. And mu, using mu formula, again mu you can verify. So again mu, how much you got? You got the mu equals to 0.678. So mu is, it should be greater than 1. So mu is again less than 1. So mu ka value be less than 1. So it is potentially unstable. So what you have to draw a Smith chart. Smith chart draw करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? So you need a formula. Okay, so formula for two circle, impedance matching at load and source. So the center of radii, that the stability circle given by this, that is the CL RL.
CL का यह फॉर्मूला, RL का यह फॉर्मूला, CS एंड RS। ओके, CL में S22 है, RL में भी S22 है, CS और RS में S11। Rest of other things are almost same. So this comparative way you can remember the formula. RL में सारे मॉड है, RS में भी मॉड है, क्योंकि उनको फाइनल रिजल्ट जो है it is single number, non imaginary, but here the angle will come CS and CL दोनों में एंगल है, तो दो सर्कल होंगे, इनपुट स्टेबिलिटी एंड आउटपुट स्टेबिलिटी। ओके, CS RS in CL RL output. Okay, so this S11 and S22 both are less than 1. तो इसके लिए this we can plot a input output stability circle as shown in figure. Since S11 is less than 1 and S22 is less than 1, the central part of the Smith chart will be the stable. So you can plot this. So CL RL. So CL RL, you just find it out the angle. Now here ये angle है, angle 132, that we have to find it out. तो ये angle 132 कहाँ पे है, that we will do. So you just find it out in your Smith chart. Where is angle this 132? Or I will just open the Smith chart. Do you have the Smith chart, Sony? Sony, do you Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I have a Smith chart. find it out 132 angle, where it is? Two So angle, how to? Yes, sir. How to find angle in a Smith chart? angle मतलब outer जो मैं बताता हूँ, एक मिनट। Hmm. Is this Smith chart visible? Yes, sir. So here you can see here this angle. Okay, okay, okay. This is 130, 120, 110, 100, ये 90 यहाँ पे है, Yes, कितना sir. 80। Hmm. तो ये जो 90 वाला एंगल है, नीचे भी है 45 है, तो दैट वी डोंट रिक्वायर, वी रिक्वायर दिस ऊपर वाला 90, 100। तो इसका एक थंब रूल है। व्हाट इज द थंब रूल? दिस एंगल एट द टॉप 90 है, so that we require. ये 45 है, ये हमको नहीं चाहिए, दिस इज ऑल्सो द एंगल। ओके, Okay. so this angle that we require, so ये 132 is the angle here, 130 और 120, हर एक डिवीजन कितना है, 1 2 3 4 5 डिवीजन है, तो 132 यहाँ पे। तो Sir, 130 and then 120 है, 130 then 140, तो इधर होगा ना, 130 के ये बैक साइड होगा ना। 132 है ना, हम्म CL का बात कर रहा है, तो CL 132, तो यहाँ, हाँ ये साइड, करेक्ट करेक्ट, हाँ ओके, 140 और 130 इसके बीच में उल्टा है ऐसा, तो यहाँ पे होगा। तो आपने क्या करना है अभी, फ्रॉम द सेंटर यू ड्रॉ अ लाइन विच इज लाइन। फ्रॉम 132 एंड इट शुड गो आउटसाइड, बाहर भी जाए। ओके ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज हाउ टू प्लॉट द सेंटर। ये सेंटर कैसा ले, यहाँ पे CL जो उन्होंने लिया,
तो CL कितना है 1.59. Okay. Okay, so what is the reference for that 1.59? So 1.59 here नीचे आपको ये एक राउंडर लेना पड़ेगा जैसा आपने लिया। हाँ है मेरे पास। तो ये है आपका ओरिजिन, ये है सेंटर, ये यहाँ पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ये नीचे का जो लाइन दिया है, सो सेंटर से यहाँ तक 1 हो गए और यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3 दिया है अब टू 2 तक। ओके, तो कभी कभी है ना ये सेंटर है बाहर चला जाता है, तो थोड़ा सा अपने को देखना है। अभी अपना सेंटर कितना है 159, तो 1.6 ऑलमोस्ट है। ओके, तो 1.59, तो ये 1.6 है और 1.6 अगेन इसके दो दो डिवीजन है, तो 1.6 के पहले वाला जो है और ये है, इसके बीच में का इतना डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा। सो 1.5 इधर लिखा है और ये 1.6 के एक डिवीजन पहले के और ये इसके बीच में, तो 1.59 हो जाएगा। You put iron, whatever your राउंडर का आयन पॉइंट Yes, yes. एंड पेंसिल इधर वो ले लो। Okay. ओके, Okay, sir. I measured it. that distance you take and put it at the center. Again your iron point you put it at the center. सेंटर में यहाँ कर लो और यहाँ फिर मार्क करो। Okay, okay. Center that means कि पहले 132 तो वाले आपने लाइन points. यू हैव ड्रॉ, पहले तो लाइन निकाल लिया है 132 का। हाँ. हाँ, फिर वो भी जो आएगा आपका राउंडर और वो 1 मतलब ये स्मिथ चार्ट तक आएगा, ये यहाँ तक, और ये बाहर जा रहा है तो वहां पे मार्क करना है आपको। सो दैट विल 132 जहाँ हमने कट किया है वहां पे राउंडर रखेंगे और 132 लाइन पे कट करेंगे। लाइन निकालना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा। हाँ वो तो मैंने निकाल दिया। हाँ ये देखो ये ऐसा, ये इन्होंने जैसा निकाला 132 का लाइन निकाल लिया, यहाँ पे आपका CL आएगा, आ गया CL। 1.59 का। यस सर किया मैंने। किया किया। आ गया। अभी RL हमका देना है, अभी ये CL आ गया। नाउ व्हाट इज RL? RL इज 0.915, तो सेम 0.915 मतलब 0.92 आप बोल सकते हो। तो आप वापस इसमें जाइए सेंटर में और ओरिजिन से यहाँ तक लीजिए 0.92, 915, 92, तो ये जो एक डिवीजन है उसका 4 पार्ट करके उसमें का 3 पार्ट लेना पड़ेगा, या 92 ले लो चलेगा, वो भी चलेगा। वो ले लिया। क्या एक बार फिर से रिपीट। अभी देखिए आपका ये कितना आ गया, RL कितना है 0.915, बराबर है। तो फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग 0.912 मैं पकड़ता हूँ, सॉरी 92, तो इसमें स्मिथ चार्ट पे आपको 0.92 मिलेगा, यहाँ पे 0.9 और एक 9.9 के आगे का डिवीजन 0.92 मिल गया, मिल गया। हाँ आ गया, तो yes, 0.92 ले लिया। अभी वो जो सर्कल आपने सेंटर आपको मिला है, यू गॉट दिस सेंटर, नाउ यू ड्रॉ अ सर्कल, पूरा सर्कल निकालो। हमारा इंटरेस्ट किसमें है, ये पार्ट में।
Sir, just a second. 1 minute. You draw it. Elevate. हेलो हाँ बोलिए। सर, ये क्या था? 0.95 था ना रेडियस लेके जो हमारा RL निकालना था? 915। ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए हाँ, एक बार थोड़ा सा 915 है। मतलब हमने 0.9 मतलब 92। हाँ ओके, तो ये तो एक्चुअली 0.915 ये यहाँ पे। नहीं नहीं, तो ये काफी छोटा सर्किल हो रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ छोटा किया छोटा क्या? कैसे होगा ना? 0.9 इज स्मिथ चार्ट पे देखना। 0.9 मतलब ऑलमोस्ट पूरा रेडियस ही आ रहा है अपना। 0.92 यहाँ से यहाँ तक, एक सेकंड फिर से दिखाई सर। ओरिजिन से लेके लास्ट वाला जो लाइन है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक ना 0.92। आपका कर्सर नहीं दिख रहा है सर, एक बार फिर से हाँ दिखाइए। आपका कर्सर नहीं दिख रहा है, एक बार दिखाइए फिर से। ओके, ये 1.9। दिख रहा है? नहीं 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 नहीं। नहीं दिख रहा? ओके रुको। हम्म, अभी दिख रहा हाँ है? हाँ हाँ, व्हाइट पे व्हाइट में दिख रहा था। ये 0.92 यहाँ भी दिख रहा है। हाँ तो हाँ, यहाँ तो से यहाँ ओरिजिन से ले लो। ओके ओके ओके। मैंने वही बोला आपको, ओरिजिन से ही लेना है। वो यहाँ जीरो से। से लेंगे तो ही ये 0.92 होगा ना। हम्म। यस सर। हो गया? हम्म ओके, तो अभी देखो ऐसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना सर्कल। हम्म। ये हो गया। अभी इसका अभी निकालो सी एस आर एस का। सी एस कितना है? 162। तो 162 देखो और लाइन खींचो। ओके। CS, हाँ 162 यहाँ से लेके 62 ये यहाँ तक ले लो। ऑन सेम स्मिथ चार्ट। हाँ हाँ, 162 है। 1.62। एंगल कितना है? 162 है ना? हाँ 162 एंगल है। ये सॉरी 162 एंगल है। ये जो सेंटर है 1.09।
तो आप 1.1 1.1 ले लो, हाँ तो वही सेंटर से मेजर करके 1.1 वहां लेना। से लेके 1.1 तक ले लो, वो ले लिया। अभी 162 का लाइन एक लो, 162 हाँ एक सेकंड सर, 162 का पहली लाइन। के नीचे होगा 162, ये 140 150, ये 160 और ये 162। देन 162। तो मैंने कर्सर रखा है वहां पे 162 है, आप मार्क कर लो। हाँ हाँ हो गया। हो गया, हम्म 162 हो गया। और 1 पॉइंट, अभी ये कितना है अपना 1.09, तो 1.1 लिया, 1.1 ले लीजिए, ओरिजिन से लेके 1.1 तक। हाँ ओरिजिन से लेके 1.1 तक। ओके, और इसको मार्क कर लीजिए, 162 को मार्क कर लीजिए, यहाँ पे देखो जैसा ये 162 को किया, सेंटर थोड़ा सा अंदर ही आया, अब ये जो बाहर का लाइन है वो अंदर ही आना है। बराबर है। अभी हमको ये रेडियस कितना है 0.2 0.25, तो 0.21 भी ले सकते हो, वो ले लो आप और सर्कल बनाओ। हाँ यस सर, आई ड्रॉ दिस। हो गया, ये ऐसा ओवरलैपिंग है। यस सर। ये देखो अभी ऐसा, ये ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये सब यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है, इसको मेंशन करो CL RL, ये CS और ओके ये RS, तो वो दो सर्कल को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। ओके। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात कि S11 और S22 both are less than 1. So whatever this Okay. shaded portion, this one, this is unstable region. This region जो है ना, ये region unstable. This region is unstable. ये जो region है ये unstable. Shaded region is unstable. हाँ, और वो लिखना भी जरूरी है, उसको शेडिंग करो और ऐसा एरो दिखा के लिख दो अनस्टेबल रीजन। ओके ओके। Sir, this lecture video is uploaded in YouTube or not? हाँ मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसको प्राइवेट रखूंगा, आप लोगों को ही दिखेगा लिंक, डायरेक्ट आप सर्च Okay, करके sir. नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बुक का ये है ना, कॉपी है ना, तो इसको ओके ओके सर, आप मुझे लिंक शेयर कर देना कि कभी डाउट हो ना, जब मुझे पढ़ूंगी तो मैं मैं लिंक वापस एक बार चेक कर आप लूंगी। देखो। अभी बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो दो वीडियो आएंगे, तो ये और वो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हो। ओके सर।
ठीक है, ये समझ में आ गया, ये इतना हाँ। इतना हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिजाइन, तो ये एक क्वेश्चन स्टेबिलिटी का आता है, इम्पोर्टेंट है। और अभी सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिजाइन, अभी इसमें डिजाइन फॉर मैक्सिमम गेन, इसमें 2-3 केसेस है। तो पहला केस है डिजाइन फॉर मैक्सिमम गेन। ओके, सर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आप सेट करेंगे या बाहर से आता है? दोनों पॉसिबिलिटी। दोनों। तो दिस इज व्हाट ये सिंगल स्टेज ट्रांसड्यूसर एम्पलीफायर डिजाइन, द डिजाइन ऑफ मैक्सिमम गेन। ओके, तो ये कैसा डिजाइन करेंगे मैक्सिमम गेन, रोएस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड रॉट इक्वल्स टू रोएल, ये मैक्सिमम गेन का कंडीशन है। ओके, और ये एक फॉर्मूला है जीटी मैक्स ट्रांसड्यूसर गेन, ये जीटी मैक्स का फॉर्मूला है। ओके, तो इसमें रोएस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड रोएस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये सारे फॉर्मूले हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये सब फॉर्मूले यूज करना। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, V1 V2 A1 A2 ऐसे सारे कैलकुलेशन है। क्या है मैं बता दूँ, GTU मैक्स यूनिलैटरल गेन बोलते, ट्रांसड्यूसर यूनिलैटरल गेन मैक्सिमम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंड this is unilateral, or GT max given by this formula. This is GTU unilateral. Now this is what the numerical. What is numerical? ये इसमें डिजाइन an amplifier for maximum gain at 4 gigahertz using single stub matching section. अभी इसमें स्टब भी लगता है, लेकिन हम स्टब नहीं लेंगे, तो स्टब का डिजाइन एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में। आपने जो ये इतना सॉल्व कर दिया स्मिथ चार्ट तक, उतना सफिशिएंट। तो कैलकुलेट एंड प्लॉट द इनपुट रिटर्न लॉस एंड द गेन from 3 to 5 gigahertz. The transistor is this GAS MOSFET with the following stopping parameter which is equal to 50 ohm. तो यहाँ पे पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि 4 गीगाहर्ट्ज पे आपको क्या करना है, मैक्सिमम गेन एम्पलीफायर को दिखाना। मैंने एस पैरामीटर दिए 3, 4 और 5। तो ये पूरा टेबल भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी ये पूरा देते हैं, कभी कभी ओनली 4 गीगाहर्ट्ज का ये जो एस पैरामीटर है उसमें जो भी दिया है, ये ओनली 4 गीगाहर्ट्ज का दिया तो वो 4 का लेने का, ये बाकी सब दिया है फिर भी हमको इम्पोर्टेंट क्या है 4 गीगाहर्ट्ज, बाकी का ज्यादा काम नहीं है। ओके, नाउ सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, के डेल्टा टेस्ट करना पड़ेगा। वाई के डेल्टा टेस्ट की पहले पोटेंशियली, अभी दिस इज द पहला जो पोर्शन है वो पार्ट ऑफ डिजाइन ये है कि विच इज पोटेंशियली स्टेबल पार्ट। तो अभी 4 गीगाहर्ट्ज के लिए क्या है, के इज ग्रेटर देन 1 एंड डेल्टा इज लेस देन 1। तो फॉर 4 गीगाहर्ट्ज एंड अबव दिस व्हाट we see that k is greater than 1 and delta is less than 1 at 4 and 5 gigahertz. So the transistor is unconditionally stable. Unconditionally stable है तो सर्कल निकालने का जरूरत नहीं है। It is only conditionally stable at 3 gigahertz. So we can process. तो हमको 4 gigahertz के लिए हम प्रोसेस कर सकते हैं। 3 में ये अनकंडीशनली स्टेबल नहीं है। ओके, k लेस देन 1 है। तो फिर जाते हैं कैसा करने का। अभी इसमें रोएस एंड रोयल ये 2 पैरामीटर हमको चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है रोएस एंड रोयल। रोएस इक्वल्स टू B1
ये B1 एंड C1 का वैल्यू है, रॉयल B2 C2। ओके, तो ये B1 C1 का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया है। ओके, रोएस रॉयल, ये मैं दिखा देता आपको। ये देखो रोएस रॉयल, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रोएस, दिस इज फॉर रॉयल, दिस इज फॉर B1, दिस इज फॉर B2, दिस इज C1 C2। B1 के लिए क्या है, S11 है, S11 माइनस S22। B2 के लिए क्या है, S22 माइनस S11, उल्टा है, कंपैरेटिव। B1 के लिए S11 माइनस S2, इसका और इसका सेम है। C2 के लिए क्या है, S22 माइनस S11। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ध्यान में रखने का, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, एंगल में अगर अभी S22 और S22 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे ये फॉर्म न्यूमेरिकल में इसका 4 गीगाहर्ट्ज के लिए S22 ये दिया है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 0.72 एंगल -54, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 0.73, सॉरी ये 0.73 एंगल +54, बराबर है ना। तो ओनली एंगल का साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, रेस्ट ऑफ अदर थिंग्स आर द सेम। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, B1 B2 निकालना पड़ेगा, C1 C2 निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू कैलकुलेट B1 B2 C1 C2 बाय यूजिंग द फॉर्मूला अभी जो मैंने दिखाया। उसके बाद फिर आपका रोएस एंड रोयल, ये फॉर्मूला पुटअप करके इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये अभी 2 ही स्टेज का लगता है, आप करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। सो यू नीड अ प्रैक्टिस फॉर दिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये इसका। सो दिस इज रोएस एंड रॉयल, ठीक है। सो दिस वे ये हो गए। देन द इफेक्टिव, अभी रोएस रॉयल मिल गया, अभी इसके ऊपर से हम गेन निकालेंगे। मैक्सिमम गेन के लिए बोला है, तो मैक्सिमम गेन में 3 गेन लेंगे, इनपुट का, आउटपुट का और ट्रांसड्यूसर गेन। सो दिस इज GS, इनपुट इम्पीडेंस मैचिंग, आउटपुट इम्पीडेंस मैचिंग का और GO का। तो GS इक्वल्स टू 1/1 माइनस रो एस स्क्वायर, रो एस निकाल लिया आपने, तो ये कितना आ गया 4.12। तो इसका आपको डीबी में कन्वर्ट करना है। देखिए कन्वर्ट करके देखिए आपको ये आता है क्या, कैसा करेंगे डीबी में कन्वर्ट। लॉग का, हाँ 10 लॉग लॉग, फॉर्म ना, 10 लॉग ये कर देंगे 4.17। लॉग करके ये फॉर्मूला इतना वैल्यू आता है क्या, 4.1 एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, मैं बता रही हूँ, बता रही हूँ। या सेम 6.20। आ रहा है ना। हम्म हम्म। तो 10 लॉग इसका ये निकल, ये जनरली डीबी में आंसर मांगते पावर हैं, ये नहीं इसकी। और ये जियो, जियो कितना आ गया, जियो तो सिंपली ट्रांसड्यूसर, ये जो S21 यूनिलैटरल S21 का स्क्वायर, तो ये 6.67, इसका लॉग ले लेंगे 8.3 आ जाए इतना। और GL आउटपुट की, तो इसका यह फॉर्मूला 2.2 डी। अभी टोटल गेन कितना है आपका, इसको तीनों को मिला देंगे। सो दिस इज GTU मैक्स, दिस इज ओवरऑल ट्रांसड्यूसर गेन इज GTU मैक्स, मैक्सिमम गेन इज 6.2 प्लस 8.3 प्लस 2.2। तो ये एम्पलीफायर को हम डिजाइन करेंगे, तो दिस एम्पलीफायर विल गिव
द मैक्सिमम गेन ऑफ 16.7 dB, उससे ज्यादा नहीं देगा. हम्म, Okay, so this is what called the maximum gain amplifier. हम्म, हो गया आपका ये डिजाइन हो गया. अभी इसमें क्या है कि आपको ये स्मिथ चार्ट करने का जरूरत नहीं. स्टब मैचिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड. हम इसको Okay. मैं डिफाइन कर देता हूं. अभी ये GT मैक्स आपको अनकंडीशनली स्टेबल है. ए डेल्टा टेस्ट में हम्म, दिस इज अनकंडीशनली स्टेबल, तो स्टेबिलिटी सर्कल निकालने का जरूरत नहीं है. अगर ये Okay. पोटेंशियली स्टेबल है तो के डेल्टा टेस्ट के अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड इट आउट द व्हाट, वो स्टेबिलिटी सर्कल निकालना पड़ेगा. हम्म, ठीक है, हम्म, समझ में आ गया? yes sir. ओके, सो दिस इज व्हाट योर स्टब हम स्किप कर देंगे, वो जरूरत नहीं क्योंकि वो बहुत लेंदी होता है और इतना टाइम Okay. नहीं. तो ये स्टब डिजाइन करके इन्होंने बता दिया. एक लास्ट एक ये है, दैट इज द, ये समझ में आ गया पहला वाला. Yes sir. Yes sir. Okay. The next is the constant gain circle and design for the specific gain. Specific gain अभी हमने क्या देखा, मैक्सिमम गेन. अभी वो 16.7 dB के लिए मैक्सिमम गेन है, लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक गेन चाहिए. तो फिर उसके लिए हाउ टू डिजाइन. तो स्पेसिफिक गेन के लिए ये कंसेप्ट आता है, यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट. ये कभी कभी थियरी में पूछते हैं, व्हाट इज यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट. तो this is what the important concept. So 1 upon u, 1 upon 1 plus u square and 1 upon 1 minus u square. इसके बीच में gt minus gtu. So u is given as the unilateral figure of merit. So this is u. So this is u. So what is this unilateral figure of merit? This is u and this is by gt by gtu. मतलब क्या है? What is this concept? Here, if your practically, if your amplifier is not a unilateral, unilateral मतलब क्या है? You are giving input and it giving output. There is no reflection. 100% transmission from input to output. Agree? But practically, sometimes it may not be possible. In practical case, there may be very few minute reflection, maybe 1%, 2%. So this unilateral figure of merit, GT by GT, it gives the ratio that how much is that deviation, as this is not unilateral, but we are considering unilateral. So how much is the deviation? So this is what the unilateral figure of merit. Okay, understood? So Yes this sir. concept is required. So this same thing is explained here. Okay, GS, GL, GS max and GL max. Now what we are doing, this GS and GL. So instead of using this formula, what we are using, we will use this formula. Why? Because what we are considering here, we are considering the transistor is unilateral. Okay, unilateral, and we have mentioned the error. यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट से हमने क्या मेंशन कर दिया, एरर मेंशन कर दिया कि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं यूनिलैटरल, लेकिन ये है नहीं. बट द प्रोबेबल एरर विल बी दिस मच. इतना एरर है, कितना रहेगा वो न्यूमेरिकल में मैं बता दूंगा. अभी नाउ व्हाट इट विल गिव द सिंप्लीफिकेशन इन द डिजाइन. GS is this, GL is this. So this gain can be simplified to this formula. Why? Because if you will say that it is the maximized, so it is, there is no reflection. So no reflection means what? Rho S is equals to S11 complex conjugate and rho L equals to S22 complex conjugate. Impedance match हो गए, इनपुट का और आउटपुट का.
So this is the condition, rho s equals to S11 complex conjugate, rho l equals to S22 complex conjugate. ये हमने इसमें डाल दिया. So what we'll get? We'll get this formula. Okay, ये formula हमको मिल गई. Now we'll use this formula and define normalized gain factor GS and GL. इसमें normalized gain factor भी निकालना पड़ता है, वो इससे निकालते हैं. वो कैसे निकालते हो मैं बताता हूँ. ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपनिंग. और CS और RS का फॉर्मूला यहाँ चेंज है. it calculated from the normalized gain factor GS, GS, GL. ये स्टेबिलिटी वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला है उससे थोड़ा अलग है. इसका डेरिवेशन भी करना पड़ेगा अगर पूछे तो. हाँ, इसका डेरिवेशन जो है मतलब सॉल्व किया हुआ है पूछते, डेरिवेशन नहीं पूछते, वो फॉर्मूला ही है. अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं पूछते, न्यूमेरिकली पूछते. ओके डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके सर. CS, RS, CL, RL फॉर्मूला रिमेम्बर करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क. ओके, so now we will go for this design of amplifier. So amplifier design for specific gain. तो एक स्पेसिफिक गेन के लिए, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक गेन का है कि किसका है. What design an amplifier to have a gain of 11 dB. Now आपका मैक्सिमम गेन इससे ज्यादा होगा. You may have the maximum gain maybe whatever it is, वो हमको निकालेंगे अभी समझेगा. At 4 gigahertz, plot constant gain circle for GS equals to 2 and 3 dB. तो कांस्टेंट गेन सर्कल हमको निकालने हैं, ये स्टेबिलिटी सर्कल नहीं है. तो GS मतलब इनपुट गेन जो है 2 dB और 3 dB का निकालना है. GL 0 dB and 1 dB आउटपुट वाला. एंड कैलकुलेट एंड प्लॉट द इनपुट रिटर्न लॉस फॉर द एम्पलीफायर गेन 3 to 5 गीगाहर्ट्ज वगैरह तो दिया है. ट्रांजिस्टर दिया, Z050 दिया. Now S पैरामीटर दिया, हमको इम्पोर्टेंस कौन सा है? 4 गीगाहर्ट्ज. व्हाई? बिकॉज इट इज आस्क्ड टू डिजाइन एट 4 गीगा और गेन स्पेसिफाई किया. तो ऐसा टाइटल कोई देगा नहीं, यहाँ पे ओनली मेंशन करेंगे कि 11 dB के लिए गेन 11 dB के लिए डिजाइन करो. सो दिस इज ऑफ दिस टाइप. प्रीवियस में क्या बोलेगा कि मैक्सिमम गेन के लिए डिजाइन करो. फॉर्मूल प्रॉब्लम सेम ही लगेगा, ओनली वो देखना है थोड़ा सा कैसा है. ओके, तो अभी यहाँ पे S12 क्या है? सिंस S12 is 0, S11 is less than ये, S11 is less than 1 and S22 is also less than 1. The transistor is unilateral and unconditionally stable at the frequency given in the above table. आप K डेल्टा टेस्ट से भी इसको वेरीफाई कर सकते. S12 0 है, मतलब क्या है? S12 इज द रिवर्स रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तो ये 0 है. फॉरवर्ड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट S21, ये कुछ वैल्यू है, रिफ्लेक्शन आपके नहीं है. तो दिस इज द अदर वे, बट यू कैन ऑल्सो गो फॉर द K डेल्टा टेस्ट. K डेल्टा टेस्ट को जाना जरूरी है, वो उसमें अनकंडीशनली स्टेबल आएगा. ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है? GS मैक्स, GL मैक्स और GO निकालना है. तो GS मैक्स फॉर्मूला सिंपल है, 1/1 माइनस S11 स्क्वायर. तो ये आ गया कितना? 2.29. इसका डीबी में कन्वर्ट करो, 3.6 dB आ गया. GL मैक्स, GL मैक्स में कितना आ गया? 1/1 माइनस S22 मॉड स्क्वायर, ये आ गया 1.56. इसका डीबी में कन्वर्ट करो, कितना आ गया? 1.9. और एक GO, ये क्या है? इनपुट गेन आउटपुट गेन. GS मैक्स, GL मैक्स. अभी ये ट्रांजिस्टर का कितना गेन? GO इक्वल्स टू S21 इक्वल्स टू S21 का मॉड का स्क्वायर. तो ये डीबी में आ गया 8 dB. अभी GTU मैक्स डीबी में है, इसके लिए एडिशन है.
नहीं तो ये अगर नॉर्मल होता तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। ओके। ओके, तो ये ऐसा डिफरेंस है, डीबी में है, इसके लिए गेन को ऐड कर रहे हैं, ये इसका मल्टीप्लाई करके फिर आपको डीबी में कन्वर्ट करना है। सो इंस्टेड ऑफ यू कन्वर्ट दिस टू डीबी एंड जस्ट ऐड। तो आपका जीटीयू मैक्स कितना है? 13.5। आपको कितने इसके लिए डिजाइन करना है? यू हैव टू डिजाइन इट फॉर द 11 बी। पॉसिबल है क्या? यस, बिकॉज द जीटीयू मैक्स इज हाइयर एंड यू आर रिक्वायर गेन लोअर। ठीक है, तो ये ऐसे सर्कल इसके बनेंगे। तो ये कैसे निकालने हैं, तो ये मैं बता देता हूँ। अभी इसमें ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम रहता है। अभी जीएस, ये जीएस निकालना है, और जीएस कितना दिया है हमको? 3 dB दिया है। ये कहाँ दिया है? प्रॉब्लम में दिया है। जीएस 3 dB के लिए निकालो, जीएस 2 dB के लिए निकालो, जीएल 1 dB के लिए निकालो, जीएल 0 dB के लिए। इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। सो ये जीएस का क्या करना है? जीएस नॉर्मलाइज, फॉर्मूला ऊपर दिया है जीएस का, जीएस नॉर्मलाइज करने के लिए। और इससे जीएस नॉर्मलाइज से आपको सीएस मिलेगा, आरएस मिलेगा। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। इनका सेंटर और सेंटर जो है लेस देन 1 रहेगा, वो इनसाइड ही रहेगा। तो ये सीएस मिल गया, ये आरएस मिल गया। तो ये एक सर्कल आ गया, इसका आ गया, ये सर्कल को नाम देना जीएस इक्वल्स टू 3 dB। दूसरा जीएस इक्वल्स टू 2 dB, ये सर्कल आ गया, इसका सेंटर जो है ये इससे कम आ गया, एंगल वही है। अभी यहाँ पे एक लिटमस टेस्ट है, मतलब वेरिफिकेशन के लिए। ये जीएस जो है ना, ये दोनों का एंगल सेम ही आता है, मैग्नीट्यूड थोड़ा वेरी होगा। अभी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। अभी देखो ये 120 डिग्री के लाइन पे ही आएगा, और जीएल जो है 70, एंगल सेम ही आएगा। अगर अलग आता है तो समथिंग इज रॉन्ग इन योर कैलकुलेशन, सो यू कैन चेक इट आउट। तो जीएस, ये सीएस और सीएल मिल गया, और रेडियस भी मिल गया। तो अभी इनपुट के ये दो सर्कल हो गए, सी एस इक्वल्स टू 0.7 और सी एस इक्वल्स टू 0.627। ठीक है, तो ये सेंटर आप 120 का लाइन खींच लो, उस पे 0.7 का एक सेंटर करो, उसमें यहाँ पे देखो ये सर्कल छोटा है, रेडियस कितना है? 1.66। इसका रेडियस थोड़ा बड़ा है, 0.294। अभी देखो सी एस के सर्कल यहाँ पे निकाले, ये देखो सी एस, ये अंदर का सर्कल है, ये सेम ऑन दिस, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको? एक मिनट में कर्सर दूसरे ले। ओके, ये 3 dB का और ये 2 dB का। तो ये 3 dB का सर्कल जो है, 3 dB का सर्कल देखो अंदर है, छोटा है, और 2 dB का बड़ा है। आप 1 dB का निकालोगे तो वो उससे भी बाहर आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये बाहर का सर्कल है। अभी कभी कभी प्रॉब्लम में ये 2 dB 3 dB ये देते नहीं है, आपको डिजाइन करना है वो, तो कभी कभी ये दे देते। वो किसके लिए? अभी ये जीएस के दो सर्कल बन गए, और आपके सेम वे जीएल के भी दो सर्कल, ये जीएल का 70 डिग्री का है। ओके, ये 70 डिग्री का ये जीएल के लिए आ गया। अभी इसके ये एक सेंटर है एक का, और ये दूसरे का, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गए। अभी अपने को गेन कितना चाहिए? 11 dB का। प्रॉब्लम में क्या बोला है ना? प्रॉब्लम में कितना बोला है? ये प्रॉब्लम 11 dB बोला, 11 dB के लिए डिजाइन करो। आपके पास कितना है? आपके पास जियो कितना है? 8 dB। तो 8 माइनस 11 कितना बचा? 3 dB आपको चाहिए। जियो तो ये देगा, तो जीएस और जीएल में से कितना चाहिए? दोनों मिलके 11 चाहिए। तो जीएस का लेंगे कुछ, जीएल का कुछ लेंगे, और जियो का तो फिक्स है 11 dB।
GS मैक्स कितना दे सकता है 3 dB, GL मैक्स कितना दे सकता है 1.9 dB। तो ये 3 dB से कम लेना पड़ेगा, ये 1 dB से कम लेना पड़ेगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे कि 11 dB हो जाए। तो अभी आपका 11 dB के लिए 11 माइनस 8 3 dB लगेगा। तो आप ये 3 dB का जो सर्कल है अंदर वाला वो ले सकते हैं 3 dB का, और ये बाहर वाला जो सर्कल है वो 0 dB का। मतलब यू कैन डिजाइन योर एम्पलीफायर इन दिस रीजन। ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ना, दिस रीजन इफ यू विल डिजाइन योर एम्पलीफायर, तो ये ओवरलैपिंग रीजन क्या देगा आपको, गेन ऑफ 3 प्लस 0, मतलब कितना 8 प्लस 3 11 dB का है। दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, ये सर्कल कितने dB का है, GS दिस इज 2 dB, और ये छोटा सर्कल अंदर वाला कितना है 1 dB। सो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 dB, और 8 dB तो उधर है, 8 प्लस 3 कितना होगा 11। सो दिस, 1100. so two possibilities are there, either you can select this area, ओवरलैपिंग एरिया चाहिए क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल ओवरलैपिंग चाहिए। So this overlapping area will give you the gain of 11 dB. This overlapping area will give you the gain of 11 dB. So you can select either or. समझ में आ गया? ओके सर, पहले बनाऊंगी फिर ज्यादा से। हाँ, ओनली इसमें एक ही चैलेंज है कि GS को कैलकुलेट करने का। ये GS का फॉर्मूला देखो, थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, उसमें टाइम लगता है। ये देखो, ये GS का, हाँ GS और GL, तो GS और GL आप इससे नहीं निकाल सकते, आपको इससे निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका GS है, दिस इज GS एंड दिस इज GL। तो ये आपको ये फॉर्मूला से GS निकालना पड़ेगा 2 बार, GL निकालना पड़ेगा 2 बार, नहीं सॉरी, GS एक बार, GL एक बार, और उसको 2 बार यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये देखो यहाँ पे GS 3 dB, हाँ GS 3 dB के लिए स्मॉल GS निकालना है, और GS 2 dB के लिए भी स्मॉल GS निकालना है। तो वो इससे थोड़ा वेरी होगा, स्मॉल GS एंड स्मॉल GL, GS एंड GL। ये GS और GL का फॉर्मूला, ये क्या है देखिए, GS अपॉन GS मैक्स, इससे भी निकालो, इससे ही निकालो, सिंपल। ये इसमें मत जाओ, ये टाइम लगेगा। हाँ सिंपल मिलेगा आपको GS। तो GS कितना है आपका 2 dB है, GS मैक्स कितना है, आपने GS मैक्स निकाला ना, और GS आप कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें से स्मॉल GS मिल जाएगा, इसमें भी स्मॉल GL मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला चाहिए तो आप लिख लो, दिस मच GS का, इतना ही रिक्वायर्ड है, बाकी नहीं। ओके। ओके सर। तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया।
आपने ये डिजाइन कर लिया, ये देखो हो गया आपका डिजाइन। स्मिथ चार्ट पे इतना डिजाइन कर लिया हो गया। सो दिस इज व्हाट द एम्पलीफायर डिजाइन। और एक केस बचता है लो नॉइस एम्पलीफायर डिजाइन। इसको क्या करूं बताओ या स्टॉप करूं? सर थ्योरी है तो मैं पढ़ूंगा, नहीं कुछ theory नहीं, न्यूमेरिकल है ये तो। लो नॉइस के लिए अभी जैसा स्पेसिफिक गेन के लिए है ना, इसमें भी स्मिथ चार्ट है, स्पेसिफिक गेन के लिए इसको निकालना है। तो ये स्पेसिफिक गेन के लिए ऐसा, ये उससे भी लंबा वाला प्रॉब्लम है और इसके ऐसा नॉइस फिगर की सर्कल है, इसमें भी ऐसा problem एग्जाम, फाइनल एग्जाम कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। है। हाँ फाइनल एग्जाम कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। हाँ, तो ठीक है हम इसको थोड़ा अभी क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं आपको, क्योंकि वो एक ही दिन में सब जो है ना बहुत भारी पड़ेगा। मैं ये दोनों पढ़ लूंगी तो कभी भी आपसे टाइम ले सकती हूँ ना कि ऐसा आप हाँ, समझा दीजिए मुझे। तो